Okay, so far we have looked into gradient descent and कैसे हम लोग उसमें पैरामीटर को अपडेट करते हैं iterative way, right? So in one iteration we update all those parameters that those parameters sets the hypothesis function. So in iterative way we update the those parameters, right? So there is another method that we call the normal equation method. So this is the analytical way to calculate those parameters. So we will look in this lecture, we will look at. So let's suppose we have this given data set. So we have here 1 2 3 4 4 trainee examples, right? Okay, what we will do, so let's first look at these input variable. How many input variable do have? So this x0 is not a variable, right? If you recall from my last lecture, then what we are considering is 1. So this is not a feature or variable. Even if it is, we are keeping it as a constant and we are considering this as 1. So how many variables we have? So x1, x2 and x3 and x4, right? And so we can write this as a matrix. So how we can write? So we can write like this. So what we can do is we can take this as a first column, this one is second, this third column and fourth column, and this is as a fifth column. So we can write it as a matrix. So it will be 4 row, it will have 4 row, and how many columns, how many numbers of variable we have is 1 2 3 4 but plus 1. So it will be of 4, shape of the matrix will be 4 by 5. So it will be 2014. Okay, so for this specific example we have 4 trainee examples, right? This is trainee examples, and this one is features. So features. So if we have m trainee examples, then in general how we can the formation of this matrix will, let's consider this matrix as a what will be the size if we have m trainee examples and n features, then what will be the shape of this matrix? It will be m rows and n features, that means n plus 1. Why n plus 1? This x0 we are taking at, so what will be the size? That m cross n plus 1. So the shape of the matrix of A will be this for the m cross n, for m number of features and n number of variables or for m number of trainee examples and n number of features or input. अब ये तो इससे पहले ये चीज़ थोड़ा बहुत आपको समझने के लिए मैट्रिक्स का नॉलेज रहना चाहिए. एंड इन मैट्रिक्स इफ आई से स्पेसिफिकली यू हैव टू कमांड ओवर 4 फंडामेंटल सब स्पेसेस. आपको ये समझ में आना चाहिए कि कॉलम स्पेस क्या होता है, रो स्पेस वगैरह क्या होता है, सब स्पेसेस समझ में आना चाहिए. एंड आफ्टर दैट you need to have the visualization of projections, right? So if you understand and if you have visualized in your mind these two things, that the subspaces and the projection, then you will easily understand the mathematics behind this normal equation. And why we are calling it as a normal equation we will see. Also what we are trying to achieve, we are trying to calculate the parameters, right? That theta, so that is
theta 0, theta 1, theta 2 and up to theta n. These are the parameters. If we get to know these parameters, the optimum value of these parameter, that will set our hypothesis function in the given data set, then we are good with that. What ऐसे भी हम लोग ग्रेडियंट डिसेंट में क्या कर रहे थे, यही थीटा 0, थीटा 1, थीटा 2 को अपडेट कर रहे थे ना, एंड इटरेटिव वे में, एंड वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द मिनिमा, राइट. जैसे जैसे हम लोग अपडेट कर रहे थे वैसे वैसे हम लोगों का जो हाइपोथेसिस फंक्शन है वो फिट हो रहा था ग्राफ में. और ऐसा हम लोग क्यों कर रहे थे, ये थीटा 0, थीटा, ये पैरामीटर्स को हम लोग अपडेट क्यों कर रहे थे, ताकि आपका जो हाइपोथेसिस फंक्शन का आउटपुट है और जो आपका एक्चुअल आउटपुट है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो वो मिनिमाइज हो, कम से कम हो फॉर ईच ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स. सो दैट वाज आवर गोल दैट वी वेयर ट्राइंग टू डू. ठीक है, अब सेम प्रॉब्लम को वी विल अप्रोच इन डिफरेंट वे एंड गेट द रिजल्ट. ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल वे अप्रोच करेंगे हम लोग इस प्रॉब्लम को. ओके, तो नाउ वी हैव दिस मैट्रिक्स ए, राइट. नाउ okay, so let's first take a more simpler version to understand the matrix form. So what we are looking, so let's take a simple example. So in this example, in this data set, what I am going to do, okay, let me first of all tell you that, okay, let me take the example. So we have, let's take a single variable again, and we have this one x1, and we will take also x0, right. So x0 1 1 1, and x1 is 1 2 3, and this y is let's take it as 1 2 3, right. So here if you see, we have how many features, we have one feature, right. So also observe this y. First let's create the matrix. How we are going to create the matrix A will be 1 1 1. This column we will take this one as a column, right, this one, and what will be the second column, 1 2 3. So now we have this matrix A. Now observe this y. So if you know about the column space, then you can say that this y is in column space of A. Why I am saying, you take the multiple of this column, and what multiple, just multiply 1 with this column, then simply you will get this y, right. So there is some combination that exists with each column that will give you this y. So y is in the column space of A, right. Okay, so now let's draw the data points. So let's take this x1 variable input and y. So you will simply, you can see that 1 2 for 3 3. So for 1 1, and for 2 it is 2, and for 3 it is 3, right. Okay, now my question is, what is the best fit for this line, or I am asking that what will be the hypothesis function.
So let's proceed. What will be the hypothesis function? So it will have the two parameter, right? Theta 0 and theta 1 x. So this is the hypothesis function, how this hypothesis function will look like for the given example. Now what we are looking is for the theta 0 and theta 1, right? So we are looking for, if you look at this matrix A, so we are looking for some combination. Let's call this combination as theta. We are looking for some combination of A that will give me y, right? So our unknown is here theta, and what is theta? That theta is, if you write this theta matrix as a theta 0 and theta 1, right? So now you have the question 1 1 1 1 2 3. This is matrix A, and what combination theta 0 and theta 1 you will take, and you will get the 1 2 3, right? So you can solve it easily. So what you will get is theta 0. What will be the theta 0? It will be 0, right? And theta 1 is 1. So you put here theta here 0 and here 1, and you multiply it, you will get this y, right? So what will be your hypothesis function? X, right? So it was obvious that this should be hypothesis function for this set of data, right? So there are few points that I am again mentioning, that this y was in the, this y is in the column space of this matrix A, right? And we solve for this theta, right? Now let me ask you, do we have this kind of data set every time? No. In practical scenario, there is no point of solving this kind of problem. In practice, we will not have this kind of data set. So how, let's take again the with the 3 data set. So how you will, how the data set will look like? Maybe it will look like something like this, right? Now if I ask you what would be the best fit, so it will be maybe for some value of 1 it will be 3, and for few, maybe for 2 it is 5, and for maybe for 4 it is 3.5 or something else. Let's take 4. So this is x1 and this is y. Okay, now if now let's first let's first write the matrix A for this data set, right? So we will have this x0 1 1 1, that we are taking x0 as 1 1 1, and input is 1 2 4. So this is matrix A, right? And we will have this theta 0 and theta 1, that hopefully that will produce this y, that is 3 4 5. So do we get any solution in this case? Do we have any solution in this case? No, we will not get any value of theta 0 and theta 1 that will
give us 3 4 5. Hopefully we will not get this. So I have taken such a way that this y is in not the column space of this matrix A, right? So now क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन जो होगा, हाउ आई विल now okay, but again we want the fit, right? We want the hypothesis function h theta of x that can fit in this kind of data set. Question is still there, right? but आप देखो, अब जब ये कॉलम स्पेस में नहीं है, then you will have to think differently, right? because अल्टीमेट गोल तो आपको थीटा 0 थीटा 1 पाना है, ठीक है? ये y, और रियल सिनेरियो में ये y नहीं ही होगा कॉलम स्पेस में इसके। अगर होगा तो दैट वुड बी द ऑब्वियस प्रॉब्लम टू डू सॉल्व, ठीक है? ये y तो इसके कॉलम स्पेस में नहीं ही होना, और यही है हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है? ये शुरू से ही हम लोग जो करते आ रहे हैं ना, चाहे वो ग्रेडियंट डिसेंट का अप्रोच हो, तो प्रॉब्लम एक्चुअली यही है। अगर प्रॉब्लम ऐसा रहता तो वी विल नॉट लर्निंग द मशीन लर्निंग, ओके? तो यहाँ पे प्रॉब्लम यही पे है कि ये तो कॉलम स्पेस में नहीं है इसका, ठीक है? बट स्टिल अब मुझे क्या जानना है कि ऐसा कौन सा थीटा 0 और थीटा 1 होगा दैट विल फिट दिस इनटू द डाटा सेट, ठीक है? तो नाउ वी वांट द अप्रॉक्स सॉल्यूशन, ठीक है? अप्रॉक्स सॉल्यूशन इन द सेंस, अप्रॉक्स सॉल्यूशन कहने का ये मतलब है ना कि थीटा 0 और थीटा 1, ऐसा थीटा 0 थीटा 1 निकालना है मुझे जो whatever vector that will give us, so maybe ऐसा थीटा 0 और ऐसा थीटा। देखो, सबसे पहली बात तो आप इस केस में ये थीटा 0 थीटा 1 नहीं, ये कॉम्बिनेशन दैट विल नॉट नेवर प्रोड्यूस दिस y, राइट? सो नाउ स्टेटमेंट हैज़ बीन चेंज्ड। स्टेटमेंट कैसे चेंज हो गया है? अब क्या है ना कि आप ऐसा थीटा 0 और ऐसा थीटा 1 के लिए लुकअप करोगे, दैट विल नॉट गिव यू एग्जैक्टली this I mean to say that will not give you exactly y, but it will be near to y, ठीक है? ये थोड़ा ध्यान, आपको इसको अभी फर्दर भी एक्सप्लेन करेंगे, बट आपको अब सॉल्यूशन क्या चाहिए कि मैं कितना पास पहुंच सकूं इस y के, ठीक है? So maybe theta 0 theta you will take and you will get this kind of hypothesis function, right? So overall problem is that what combination of this new theta, let's call it now theta 0 hat and theta 1 hat, or overall you can call it theta hat, ठीक है? तो अब अगर आप a theta हैट फाइंड कर रहे हो, देन यू विल गेट सम वेक्टर, और यू कैन कॉल इट मैट्रिक्स, whatever, some vector that will be near to y, ठीक है? now we are looking at this problem, और ये सम वेक्टर जो होगा ना, ये सम वेक्टर नाउ इट विल बी इन द कॉलम स्पेस ऑफ, दिस विल बिलोंग टू कॉलम स्पेस ऑफ दिस मैट्रिक्स A. आई होप इट इज़ मेकिंग सेंस। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। ओके, नाउ अब मैं क्या करूँगा ना कि आप देखो, आप यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो भी मैट्रिक्स है वो हायर डायमेंशन का है, राइट? इफ़ यू सी दैट वी हैव द 4 रो
और जो कॉलम स्पेस है आपका वो मे बी होपफुली इफ़ वी डू द elimination then maybe we will get the pivot in every column and we will have 1 2 3 4 5 dimension right। अब मैं क्या करता हूँ ना कि थोड़ा ये जो मैंने एक्सप्लेन किया इस चीज़ को, लेट्स विजुअलाइज with this a very simple case that is through the what I will consider is a simple line as a subspace। okay, let me explain you। so आप क्या कंसिडर करो ना कि आपके पास एक कोई लाइन है, यू कैन कंसिडर इट एज ए सब स्पेस, ठीक है। और अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी वेक्टर इस लाइन पे रहता, ठीक है, तो वो किसी ना किसी का, अच्छा छोड़ो आप, अब उससे पहले मैं एक चीज़ और चलो आप क्या करो, पहले बीज को जो है आप ये कंसिडर करो पहले बी को कि दैट इज़ नॉट इन द सब स्पेस ऑफ दिस लाइन, ठीक है। तो इस सब स्पेस से बाहर है, तो आप मान लो कि ये बी समवेयर यहाँ पे है, ठीक है। और मान लो कि कोई वेक्टर ए इस पे है, इस लाइन पे, ये मान लो कोई वेक्टर ए है, ठीक है। और यही वेक्टर ए जो है ना, मैं किसका सिंपलर वर्जन ले रहा हूँ ना, इस ये मैट्रिक्स जो ए है जो कि मे बी 2 डायमेंशनल सब स्पेस क्रिएट करेगा, यहाँ पे मैं उसको ये स्मॉल ए से डिनोट कर रहा हूँ, दैट इज़ ए सिंपल लाइन, ठीक है, और ए सिंपल वेक्टर, ठीक है। तो ये आपका इस ए के एनालॉगस है, ठीक। अब देखो ये बी जो है यहाँ पे, बी किसके एनालॉगस है, बी जो है ये वाई के यहाँ पे है, ठीक है। तो आप ये देखो क्या बी जो है, और ये सिंपल सब स्पेस हम ले रहे हैं, एक लाइन है, ठीक है, ये आपका सब स्पेस है, क्या बी जो है वो इस सब स्पेस में है, इस लाइन पे है, नहीं है, ठीक है। तो नाउ अगर आप इस स्टेटमेंट को देखोगे तो ये आपका ए हो गया, ये थीटा कैप। नाउ यू वांट सम वेक्टर दैट विल बी नियर टू वाई एंड दैट विल बी नियर टू इस केस में बी, और वो कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, सब स्पेस ऑफ ए में बिलोंग करना चाहिए। कौन सा वेक्टर, ये कोई भी सम वेक्टर होगा जो ए में बिलोंग करेगा, ए सब स्पेस में बिलोंग करेगा और इस केस में लाइन पे बिलोंग करेगा, और वो ऐसा वेक्टर होगा जो इस वेक्टर y के काफ़ी पास होगा, और इन दिस केस इस b के काफ़ी पास होगा। तो सबसे पहली बात तो आप कोई भी मान लो कि वो वेक्टर मान लो आपका यही है, मान लो कि ये वाला वेक्टर, ये वाला, ठीक है। अब मैं पूछूंगा कि क्या ये वेक्टर मान लो कोई भी आप मान लो इसको आर मान लो, ठीक है, क्या ये आर 20 से नज़दीक है या इससे भी कुछ अच्छा हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है इससे अच्छा। क्या सबसे बेस्ट हो सकता है जो बी के, कौन सा ऐसा वेक्टर हो सकता है बी जो बी के सबसे नज़दीक होगा और इन द सब स्पेस ऑफ दिस लाइन, दो कंडीशन है, बी के पास होना चाहिए और विद इन द सब स्पेस ऑफ दिस लाइन, मतलब कि इस लाइन पे ही रहना चाहिए। तो वो जो होगा ना वो प्रोजेक्शन होगा, मतलब कि ये वाला जो वेक्टर आप लीजिएगा ना, दिस वन विल बी द नियर टू बी, हम यही खोज रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इस देखो अगर आप इस वेक्टर आर को कंसीडर करोगे तो ये देखो ये इस दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ज़्यादा है, ठीक है। तो वेक्टर बी और आर जो है वो वेक्टर बी के सबसे नज़दीक कौन है, तो ये वेक्टर, ये प्रोजेक्शन वाला वेक्टर है। और ये जो वेक्टर है देखो आप किस पे है, ये जो है इस लाइन पे है, ठीक है, ये वेक्टर, ये जो रेड वाला जो प्रोजेक्टेड वेक्टर है। और आप एक चीज़ और ध्यान दो कि इसमें कौन सा वेक्टर मुझे पता है, इस सब स्पेस में कौन सा मुझे वेक्टर पता है, तो ये वेक्टर ए मुझे पता है। तो ऑब्वियसली होगा कि ये जो वेक्टर होगा जो प्रोजेक्टेड वेक्टर है दैट विल बी सम टाइम्स एक्स टाइम्स ऑफ ए होगा, कुछ
मल्टीपल ऑफ ए होगा, क्योंकि ये वेक्टर सिंगल है जो कि इस पूरा सब स्पेस को डिफाइन कर सकता है। मतलब आप बोल सकते हो कि ये इसका बेसिस है। तो सिंपली ये जो है कुछ जो प्रोजेक्टेड वेक्टर होगा वो एक्स हैट, ये कुछ एक्स हैट जो होगा कोई एक नंबर होगा, ठीक है, उसका मल्टीपल ऑफ ए होगा, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है दैट इज़ नियर टू बी एंड मुझे यही चाहिए, ठीक है। नाउ आई एम लुकिंग फॉर what I am looking for is this x hat, right? If I know this x hat, then I will get to know about this, let's call it this p, this vector p, then ये p मुझे पता रहेगा, ठीक। अब देखो इस so what I am looking for is that आपके पास कोई वेक्टर a है, ठीक है, और उसका सम मल्टीपल, ठीक है। तो ये अगर x हैट मुझे मालूम रहेगा देन आई विल गेट टू नो अबाउट दिस वेक्टर p, दैट इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ b, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल लाइन प्रोजेक्शन में, ठीक। अब जो है अगर आप इस आइडिया को एक्सटेंड करते हो then you can also think about the n dimensional vector and n dimensional subspaces, ठीक है। तो अब देखो ये x हैट आपका, तो ओवरऑल बात है, अगर आप जैसे कि मान लेते हैं कि जैसे कि ये आपका ये कॉलम स्पेस ऑफ ए हो गया, ठीक है, ये आपका कॉलम स्पेस ऑफ ए हो गया। अब जो ये जो वेक्टर है ना वेक्टर बी, वो इस कॉलम स्पेस में नहीं है, वो क्या है ना कि कहीं समवेयर इस तरह से मान लो आप ये है, ठीक है, ये वेक्टर बी है, ठीक है। नाउ अब जो है हम लोग ये बी के लिए नहीं ढूंढ रहे हैं, ये बी के लिए सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हैं, अब हम लोग किसके लिए सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, जो बी के सबसे पास है। तो बी के सबसे पास क्या है, तो इसका प्रोजेक्शन है, बी का जो प्रोजेक्शन है इन कॉलम स्पेस, तो ये बी का जो प्रोजेक्शन है उसके लिए हम ढूंढ रहे हैं। और सिंस ये जो वेक्टर है ये ब्लू वाला वेक्टर वो कॉलम स्पेस इन ए के कॉलम स्पेस में है, डैट मीन्स कि ये जो वेक्टर होगा ए टाइम्स सम एक्स हैट होगा, ठीक है, एंड दैट विल बी द p vector projected vector, or maybe it will be p, right? so ये जो है आपका हम अब जो है वी आर नॉट सॉल्विंग दिस ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, वी आर नॉट सॉल्विंग दिस। और यहाँ पे अगर आप हम बोले तो यहाँ पे हम लोग ए थीटा 0 इज इक्वल टू वाई के लिए सॉल्व नहीं कर रहे हैं। नाउ व्हाट वी आर सॉल्विंग इज ए थीटा, सॉरी थीटा 0 नहीं, थीटा हैट इज इक्वल टू पी। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। now if you get to know about this theta hat, then this theta hat जो है ऐसा कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करेगा इस मैट्रिक्स ए के साथ जो कि ये p में ट्रांसफॉर्म कर देगा इस आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। और ये जो p होगा वो एग्जैक्टली b नहीं होगा, इन दिस केस एग्जैक्टली y नहीं होगा, इट विल बी इन द column space of this matrix A, but it will be near to this y, so that is what we are looking for, right? So okay, now how we can approach, how we can find this theta hat, in this case सिंपल है। आप अगर वन डायमेंशनल में लाइन के केस में देखोगे तो ये एक्स हैट फाइंड करना है, तो आप ये मैट्रिक्स ये वेक्टर कंसीडर कर लो, लेट्स कॉल इट दिस ई। सो आप ये देखो कि आपका ये जो ई वेक्टर है दैट इज़ ई, और आपका जो ये पी है पी डॉट ई, ये क्या है, ये आपका ऑर्थोनॉर्मल है, ऑर्थोगोनल है, राइट, दोनों ऑर्थोगोनल है, तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो
वो क्या होगा, 0 होगा, राइट। अब इस ई को आप कैसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन, ई को आप कैसे लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू पी बी माइनस पी, राइट। सो हियर यू कैन राइट ई को बी माइनस पी, और इसको और फर्दर कैसे लिख सकते हो, बी माइनस पी को क्या लिख सकते हो आप, एक्स हैट ए, और ए आपको पता है, मतलब इस केस में ए पता है, उस केस में आपको कैपिटल ए पता रहेगा जो कि मैट्रिक्स है, इस केस में आपको ये वेक्टर ए पता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये आप ए लो क्योंकि ए पता है ना, तो ए डॉट ई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं आपको, ए ट्रांसपोज ई को क्या लिख सकते हैं, बी माइनस एक्स हैट ए इज इक्वल टू 0, राइट। सो अब फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट इज ए ट्रांसपोज बी इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए, ये एक्स हेड तो कोई नंबर है तो आप कहीं भी रख दो एक्स हेड, ठीक है। तो यहाँ से एक्स हेड कितना आ जाएगा आपका, ए ट्रांसपोज ए डिवाइडेड बाई ए ट्रांसपोज बी, ठीक है। तो ये आपका एक्स हेड आ गया, ये सिंपल लाइन के केस में हो गया। अब सेम वे आप इधर भी फाइंड कर सकते हो। अब देखो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसको नॉर्मल इक्वेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि बाई यूजिंग दिस इक्वेशन, राइट, by using the orthogonality that if two vector or two subspaces are orthogonal then उनका जो कोई भी उसमें से कोई भी आप दो वेक्टर उठा लो, दोनों सब स्पेस है और उनका डॉट प्रोडक्ट लो तो 0 होगा। तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी यानी कि यूजिंग नॉर्मल प्रॉपर्टी वी आर फाइंडिंग दिस क्वांटिटी, राइट। नाउ यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, नाउ यू आर नॉट इन द लाइन, you have some kind of subspace, so आप कैसे कर सकते हो, जैसे कि देखो ये आपका एक तो ये प्रोजेक्टेड वेक्टर हो गया, और एक कोई वेक्टर होगा जो कि प्रोजेक्ट होगा आपका और जो ये प्रोजेक्ट होगा अदर सब स्पेस में, और जो अदर सब स्पेस होगा वो इस सब स्पेस के ऑर्थोगोनल होगा, ठीक है। एंड कॉलम स्पेस का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लीनियर अलजेब्रा का पता होगा, तो इसका जो ऑर्थोगोनल सब स्पेस होता है वो क्या होता है, लेफ्ट नल स्पेस और नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो अगर आपका एक इसके परपेंडिकुलर इस बी का एक और कंपोनेंट आएगा दैट विल बी सम वेक्टर, लेट्स कॉल दिस वेक्टर ई, ठीक है। तो यहाँ से अगेन आप लिख सकते हो ई इज इक्वल्स टू पी माइनस बी माइनस पी, राइट, बी माइनस पी, और यहाँ पे पी क्या है आपका, दिस वन, राइट। सो हाउ यू कैन राइट इज ई इज इक्वल टू बी माइनस ए एक्स हैट, ठीक है। और इसमें दो ऑर्थोनॉर्मल कौन कौन से हैं, तो ये आपका एक है और ये वाला है, ठीक है। ई तो आप क्या करिएगा, डॉट प्रोडक्ट लीजिएगा, सो दिस वन, एंड वी नो दैट सम वेक्टर सम मैट्रिक्स from this column space, right, so we already have the information of some matrix A from here, right। तो जो भी मैट्रिक्स आपका A होगा उसका आप ट्रांसपोज ले लो विथ what with this E, and that will give you 0 because those are orthonormal। so यहाँ से आप लिख सकते हो A ट्रांसपोज E को क्या लिख सकते हो आप, B from here B minus A x hat is equal to 0। now A transpose B is equal to A transpose A x hat, right, and these are the matrix। so आप x hat यहाँ से क्या लिख सकते हो, x hat is equal to
ए ट्रांसपोज ए का इन्वर्स इंटू ए ट्रांसपोज बी. So this is same as the theta hat. So theta hat is equal to A transpose A inverse A transpose B. So that will give you the theta 0, theta 1, theta 2 up to theta n. So अगर आपको क्या इसमें पता रहना चाहिए, आप देखो, आपको you just need to know this, right? ओके, यहाँ पे ठीक. और ये b क्या है आपका, ये b y है, ठीक है. आउटपुट जो है आपका y है, ठीक. ओके, सो दैट इफ़ यू नो दिस a, और a क्या है यहाँ पे, सिंपल ये वाला मैट्रिक्स. तो ये मैट्रिक्स तो आपको पता ही है ऑलरेडी, ठीक है. आप क्या करो, इसका ये कैलकुलेशन करो, उसका ट्रांसपोज लो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर उसका इन्वर्स निकालो, देन मल्टीप्लाई विद द ए ट्रांसपोज, एंड ये भी आपको पता है, देन यू विल गेट दिस एस्टिमेटेड थीटा. सो आप ये कंपेयर करो कि किस तरह से हम लोग ग्रेडियंट डिसेंट में निकालते थे. नाउ यूजिंग द नॉर्मल इक्वेशन हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस थीटा हैट, ठीक है. और इसमें क्या बता सकते हैं, एंड नाउ यूजिंग दिस थीटा 0, थीटा 1, थीटा 1, यू कैन गेट योर हाइपोथेसिस फंक्शन, दैट इज एच थीटा एक्स इज इक्वल टू x0 प्लस थीटा 0 1 थीटा 0 थीटा 0 x0 प्लस थीटा 1 x1 प्लस थीटा 2 x2 प्लस थीटा 3 x3. सो यू कैन गेट दिस, यू कैन गेट योर हाइपोथेसिस फंक्शन, राइट. और ये जो अब जो है ये hypothesis function, how this will look like, it will not be a line, right? Even it will not be a plane in case of more than 2 dimensional. It will be some kind of hyperplane that I cannot visualize it. So अगर यही आपका सिंगल वेरिएबल के लिए रहता तो ये जो होता आपका एक लाइन फिट होता इन योर डाटा सेट. बट अगर आपका n डायमेंशनल डाटा सेट है, डैट मीन्स कि आपका डाटा सेट कुछ इस तरह से बिखरा पड़ा हुआ, आप कोई भी डायमेंशन ले लो, मे बी 3 डायमेंशन और मे बी लेट्स टेक इन अनदर डायरेक्शन और मे बी दिस. सो ये कोई भी आप ले लो, मैं सपोज करो ये 4 डायमेंशन है, तो आपका जो डाटा वगैरह जो है, देयर इज़ नॉट ओनली वन थिंग टू इंडिकेट योर डाटा पॉइंट. यहाँ पे क्या है कि 4 इनपुट पॉइंट्स है, ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने डाटा पॉइंट को दर्शाओगे. सो अगर आप 3 डायमेंशनल में कंसिडर करोगे तो आप अपने रूम में हो और डाटा पॉइंट्स विल फ्लोट अराउंड यू. सो नाउ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर ए सम काइंड ऑफ प्लेन, फ्लैट प्लेन दैट विल फिट विथ दीज डाटा. सो दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट हियर. सो अगर ये थीटा 0 थीटा 1 मुझे मालूम चल जाता है, तो दैट फ्लैट प्लेन I can get it, and that will be fitting into our data set in higher dimensions. Okay, so now why this normal equation? हम लोग जब gradient descent से calculate कर ही रहे थे, तो why this normal equation to solve this theta 0 theta 1 theta 1 theta 2. So अगर आप देखो, अगर आप सिंपल पाइथन में प्रोग्रामिंग करोगे तो I don't know, maybe you will get some library that will calculate these matrices easily. Easily I mean to say that with the less computation और डिपेंड करता है डाटा सेट पे भी कि आपका डाटा सेट में ट्रेनिंग डाटा सेट कितना का. अगर मान लेते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन कॉस्टली होता है इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटेशन, ठीक है. अगर बहुत ज़्यादा आपका रोज़ और कॉलम है, दैट मीन्स कि आपका ट्रेनिंग सेट बहुत ज़्यादा है विथ हाइयर डायमेंशंस और विद द हाइयर नंबर ऑफ वेरिएबल, देन मे बी दैट मल्टीप्लिकेशन विल बी कॉस्टली एंड यू विल नॉट go or you will not approach this solution.
So what you can do, you can go for maybe the gradient descent. So or with the less data set, maybe this normal equation form will be more convenient or more less computation than the gradient descent. So it depends on your data set. So let's look at the few of the differences and in gradient descent approach and the normal equation approach. We will look at the few differences. I hope this makes sense to you. अगर नहीं make sense बन रहा है, then what you will have to do, you will have to look at the subspaces of the matrices, subspaces और कॉलम स्पेस क्या होता है, फिर वो 4 फंडामेंटल सब स्पेसेस आपको पता रहना चाहिए. उसके बाद से फिर प्रोजेक्शन का थोड़ा बहुत आइडिया, थोड़ा बहुत क्या मतलब प्रोजेक्शन क्या होता है, आप प्रोजेक्शन से क्या सॉल्व करते हो, दैट idea you need to have, then you will have the understanding of this approach. Okay, let's look at the few of the differences and then we will close. So ये gigs for gig है. तो आप देखो जैसे कि ये gradient descent का implementation है, तो इसमें ये क्या कर रहे हैं, iteration for loop लगा करके ये आप calculate कर रहे हो, right? Now if you look at the normal equation, so you can maybe use some library and you can easily calculate this theta, right? Okay, let's not look into the implementation. So difference between the gradient descent and normal equation. So in gradient descent we need to choose the learning rate. Okay, so वहाँ पे हम लोग देख रहे थे अल्फा लर्निंग रेट वगैरह आ रहा था, नंबर ऑफ इटरेशन एंड अदर hyper parameters. So obviously we will have to choose the other parameters and number of iteration in case of mini batch gradient descent. Yes. And normal equation में क्या है, in the normal equation there is no need to choose the learning rate, right? So देखा हम लोगों ने जब ये सॉल्यूशन देख रहे थे, then there is no concept of learning rate, right? It is the iterative algorithm that gradient descent, and it is an analytical approach. Gradient descent works well with large number of features. Large number of features मतलब कि हायर डायमेंशन के साथ, मतलब कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा होगा आपका इनपुट वेरिएबल. And normal equation works well with a small number of features. Okay, so maybe that matrix multiplication would be costlier for maybe the higher number of feature or higher number of input. Okay, feature scaling can be used. फीचर स्केलिंग अभी तक आपको अगर नहीं पता है तो फीचर स्केलिंग क्या करते हैं हम लोग, वी विल ऑल्सो लुक एट दिस फीचर स्केलिंग. कोई ना कोई लेक्चर में ये फीचर स्केलिंग भी, मतलब ओवरऑल करने का मतलब क्या, फीचर स्केलिंग में करते क्या है ना कि हम लोग अपना जो भी डाटा, अगर कोई इनपुट का रेंज है जो कि बहुत विद इन द डाटा, विद इन द रेंज वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, देन वी स्केल दोज डाटा. तो वी विल लुक एट दिस फीचर स्केलिंग. तो फीचर स्केलिंग कैन बी यूज, नो नीड फॉर द फीचर स्केलिंग. यहाँ पे कोई फीचर स्केलिंग वगैरह का यूज नहीं है, क्योंकि इस केस में फीचर स्केलिंग का यूज़ होगा ग्रेडियंट डिसेंट में. ओके, जब ये बात करेंगे ना हम लोग फीचर स्केलिंग का, देन आई विल टॉक अबाउट दिस पॉइंट कि इसमें क्यों ज़रूरी है और इसमें क्यों नहीं ज़रूरी. नो नीड टू हैंडल नॉन इन्वर्टिबिलिटी केस, राइट. बट इसमें क्या है कि आपको देखो ये जो है ना, ये इन्वर्टिबल होना चाहिए ये चीज़, ए ट्रांसपोज ए. अगर ये इन्वर्टिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप इन्वर्स इसका फाइंड कर रहे हो ना, अगर ये इन्वर्टिबल नहीं है डैट मीन्स कि you will not be able to proceed further, right? So that is one point. Time complexity of the gradient descent algorithm depends upon the number of the iteration and the data size. The time complexity of normal equation depends on the matrix inversion operation of the input feature. Okay, matrix inversion, matrix को invert करना वो ज़्यादा computation लेता है, ठीक है. तो that will be the costlier thing I think. So जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑफ नॉर्मल इक्वेशन डिपेंड्स ऑन द मैट्रिक्स इन्वर्जन. सो
Okay, that is all from this lecture.